आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ इज़ धीरज कुमार सिंह, practicing advocate of Allahabad High Court. I am making an exclusive video for the advocates, especially for those advocates facing problem at the initial stages. This video is being made in both languages of Hindi and English so that advocates of both sides may take maximum benefit thereof. The topic of the video is relevant points to be kept in mind while drafting bail application under section 306 IPC. Let us start the topic. First, whether applicant is named in the FIR or not, or FIR is anti-time. क्या applicant FIR में named है या नहीं, और FIR anti-time तो नहीं है. Second, what is the time and date of incident and lodging of the FIR, and whether delay in lodging the FIR has been explained in the FIR or not. इंसिडेंट का समय और दिनांक और FIR लॉन्च करने का समय और दिनांक क्या है, और FIR लॉन्च करने में जो डिले किया गया है उसको एक्सप्लेन किया गया या नहीं. थर्ड, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ ऑकरेंस मेंशन्ड इन द FIR and whether there is any difference regarding place of incident in the site plan and statement of informant and witnesses, and site plan demonstrates otherwise than the prosecution case as alleged in the FIR and statement of informant and witnesses recorded under section 161 CRPC. FIR में घटनास्थल क्या दर्शाया गया है, और क्या जो साइट प्लान में जो घटनास्थल दर्शाया गया है और साक्षियों के बयान और FIR में जो घटनास्थल दर्शाया गया है उस दोनों में कोई डिफरेंस है. फोर्थ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ द अप्लीकांट. अप्लीकांट को फॉल्सली इम्प्लीकेट करने के पीछे रीज़न क्या है. फिफ्थ, व्हाट वाज रिलेशन बिटवीन अप्लीकांट एंड डिसीज. अप्लीकांट और डिसीज के बीच रिलेशन क्या था. Sixth, what is the mode of committing suicide, that is by hanging, consuming some poisonous substance, drowning or burning. सुसाइड करने का मोड क्या है. हैंगिंग, कंज्यूमिंग सम पॉइजनस सब्सटेंस, ड्राउनिंग और बर्निंग. सेवेंथ, अकॉर्डिंग टू पंच विटनेसेस ऑफ द इंक्वेस्ट and doctor conducting autopsy of the deceased, what cause of death of deceased has been characterized opined. इंक्वेस्ट के पंच विटनेसेस और डॉक्टर जो डिसीज़ का पोस्टमार्टम किया उन्होंने कॉज ऑफ डेथ क्या दर्शाया है. 8, वेदर देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन ऑफ पंच विटनेसेस ऑफ इंक्वेस्ट एंड डॉक्टर कंडक्टिंग द ऑटोप्सी. क्या पंच विटनेसेस और डॉक्टर के ओपिनियन में कोई डिफरेंस है. 9th, वेदर applicant and deceased were husband and wife and more than 7 years had passed from marriage between them. From their wedlock there is any child, there was any marital discord between them, and he or she was a sensitive soul. क्या applicant और deceased husband और wife थे और उनके शादी को हुए 7 साल से ऊपर हो गए थे, और क्या उनसे कोई बच्चे थे और उनके बीच में कोई विवाह से संबंधित कोई विवाद वगैरह था. 10th, वेदर एविडेंस अपीयरिंग अगेंस्ट द अप्लीकांट मेक आउट अ केस ऑफ इंस्टिगेशन, एड और कॉन्स्पिरेसी सो एज टू क्वालिफाई एज अबेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 107 IPC and therefore to constitute an offence under section 306 IPC. क्या
अप्लीकांट के अगेंस्ट जो एविडेंस आ रहा है उससे ये पता चलता है कि उसने डिसीज़ को इंस्टिगेट या ऐड या कोई कॉन्स्पिरेसी किया था, जो कि अबेटमेंट की डिफिनीशन के अंतर्गत 107 के अंतर्गत आता है। 11th, whether there is any allegation, much less evidence of positive act of instigation, aid or conspiracy as may amount to abatement within the meaning of section 107 IPC so as to attract the provisions of section 306 IPC। क्या अप्लीकांट के अगेंस्ट कोई एलिगेशन इंस्टिगेशन, ऐड या कॉन्स्पिरेसी का था जो कि 107 IPC की डिफिनीशन में आता है, जिससे 306 का अपराध अप्लीकांट के अगेंस्ट गठित होता है। 12th, वेयर डिसीज्ड वाइफ कमिटेड सुसाइड if she committed suicide at the residence of her husband, burden as envisaged under section 106 of the evidence act has to be discharged by the applicant। क्या डिसीज ने अप्लीकांट के घर पे सुसाइड किया और यदि उसके घर पे सुसाइड किया तो जो बर्डन 106 एविडेंस एक्ट के तहत अप्लीकांट के ऊपर है उसको डिस्चार्ज करना होता है। 11th, 13th, whether a case under section 306 IPC is registered in aid of section 113A of the evidence act। क्या केस 306 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है 113A ऑफ द एविडेंस एक्ट के ऐड में की सहायता लेते हुए। वेदर देयर इज एनी सुसाइड नोट, क्या डिसीज द्वारा कोई सुसाइड नोट लिखा गया है। 17th, whether any objection has been raised by the applicant against the suicide note alleged to have been written by the deceased, और क्या अप्लीकांट के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन रेज किया गया है सुसाइड नोट के अगेंस्ट। नेक्स्ट, वेदर एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देयर इज एनी एक्सटर्नल एंटीमार्टम इंजरी फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द डिसीज, क्या पोस्टमार्टम के अनुसार कोई एक्सटर्नल एंटीमार्टम इंजरी डिसीज की बॉडी में पाया गया है। नेक्स्ट, वेदर FIR हैज़ बीन लॉज्ड against the applicant after deliberation and consultation in order to blackmail and extract money from him, क्या FIR डेलिब्रेशन और कंसल्टेशन के बाद ब्लैकमेल करने के लिए और पैसे अट्रैक्ट करने के लिए, पैसे लेने के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, द एलिगेशन अगेंस्ट द अप्लीकांट्स आर स्वीपिंग एंड जनरल इन नेचर, क्या अप्लीकांट के अगेंस्ट जो एलिगेशन है वे स्वीपिंग और जनरल नेचर का है। वेदर द अदर अक्यूज पर्सन्स अगेंस्ट होम देयर वाज सेम एलिगेशन एज दैट ऑफ अप्लीकांट वेयर चार्जशीटेड बाय द अप्लीकांट बाय द पुलिस, क्या जो अदर अक्यूज हैं जिनके अगेंस्ट सेम एलिगेशन था वो चार्जशीट किए गए या नहीं। नेक्स्ट, whether even if the prosecution case as stated in the FIR and the statement of witness during trial is taken to be true, there is element of abatement to constitute an offence under section 306 IPC, क्या FIR में जो एलिगेशन और साक्षियों के बयान में जो एलिगेशन लगाया गया है उसको सही मान भी लिया जाए तो क्या 306 का अपराध अप्लीकांट के अगेंस्ट बनता है या नहीं।
नेक्स्ट, वेदर अप्लीकांट इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर एन अबेटेड ऑफेंस, क्या अप्लीकांट को अनअबेटेड ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। नेक्स्ट, वेदर अप्लीकांट वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, क्या अप्लीकांट घटना के समय उपस्थित था या नहीं। 28, व्हेन अप्लीकांट वॉज अरेस्टेड, अप्लीकांट को कब अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट, व्हेन डिड द नेम ऑफ अप्लीकांट कम इन टू द लाइट एंड हाउ मच टाइम, अप्लीकांट का नाम प्रकाश में कब आया और कितने समय बाद आया। नेक्स्ट, वेदर नेम ऑफ अप्लीकांट केम इन टू द लाइट इन द कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ accused or मुखबिर or prosecution has relied upon extrajudicial confession of applicant and co-accused which is not reliable and is admissible, क्या अप्लीकांट का नाम co-accused या मुखबिर या अप्लीकांट के कन्फेशनल स्टेटमेंट में आया है जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। 31, वेदर देयर इज एन अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड इम्प्लीकेशन ऑफ द अप्लीकांट, क्या अप्लीकांट को इम्प्लीकेट करने के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव है। 32, वेदर देयर इज एनी रिलायबल एविडेंस अगेंस्ट द अप्लीकांट टू कनेक्ट हिम विद द प्रेजेंट क्राइम, क्या अप्लीकांट के अगेंस्ट कोई रिलायबल एविडेंस है जिससे अप्लीकांट प्रेजेंट क्राइम में से कनेक्ट होता है। 33, टू होम मेन रोल हैज़ बीन असाइंड और अट्रीब्यूटेड, मेन रोल किसको असाइन किया गया है। 34, वेदर इन्फॉर्मेंट और विटनेस हैव बिकम होस्टाइल ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल, क्या ट्रायल के दौरान इन्फॉर्मेंट और विटनेसेस होस्टाइल हो गए हैं। 35, वेदर देयर हैज़ बीन एन इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसिक्यूशन केस विच इज़ नॉट द केस ऑफ द FIR, क्या कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है जो कि FIR का वर्जन नहीं है। नेक्स्ट, वेदर फ्रॉम द CDR डिटेल्स ऑफ द अप्लीकांट्स मोबाइल collected by the investigating officer his location on the scene of occurrence has been found, क्या अप्लीकांट के CDR मोबाइल डिटेल्स क्या अप्लीकांट के CDR मोबाइल डिटेल्स से जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किया गया है उसकी लोकेशन घटनास्थल पे पाई गई है या नहीं। 37, वेदर एज पर प्रोसिक्यूशन केस इटसेल्फ देयर इज अ पैरिटी ऑफ द रोल ऑफ द अप्लीकांट एलॉन्ग विद को अक्यूज्ड हु हैज बीन ग्रांटेड बेल, क्या प्रोसिक्यूशन केस के अनुसार कोई पैरिटी है को अक्यूज के साथ अप्लीकांट की जो कि ऑलरेडी बेल पे छोड़ दिया गया है। 38, वेदर देयर इज़ एनी जस्टिफिकेशन टू कीप द अप्लीकांट इन जेल पेंडिंग ट्रायल, क्या कोई औचित्य है अप्लीकांट को जेल में रखने का। 39, वेदर अप्लीकांट्स नेम इज मेंशन इन द FIR और ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, क्या अप्लीकांट को सस्पिशन के बेसिस पे FIR में नेम किया गया है। एंड इट इज़ अ केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट द अप्लीकांट आर रिलायबल and for complete chain of circumstances pointing towards guilt of the applicant, या क्या और ये क्या एक circumstantial evidence का केस है। 40, whether there is any inconsistency in the statement of informant and witnesses recorded under section 161 CRPC, क्या informant के स्टेटमेंट और witnesses के स्टेटमेंट में कोई inconsistency है। 41, whether offence under section 306 IPC is made out against the applicant on the basis of material collected during investigation, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मटेरियल कलेक्ट किए गए हैं उससे 306 का अपराध अप्लीकांट के अगेंस्ट बनता है या नहीं। 42, सिंस लॉन्ग अप्लीकांट इज इन जेल, अप्लीकांट कब से जेल में है। नेक्स्ट, वेदर देर इज एनी क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ अप्लीकांट एंड इफ देर इज एनी क्रिमिनल हिस्ट्री विच इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन इन द बेल एप्लीकेशन। If you have not subscribed my channel so far, please subscribe my channel and like and share it so that I can get inspiration and motivation to make more videos. Thank you for watching my video. Please patiently and watch attentively.